नंबर कितना टैली करवाए थे पिछली क्लास में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कितने जुमले टैली करवाए? शुरू के 5, शुरू के 5, 6 से 10 टैली करवाए। नोट्स हाथ में ले, ऊपर रखिए अपने पास। What you have been doing? हाँ? नहीं नहीं, जवाब ही आप पढ़े जा रहे थी। What you have been doing? I have been working in the laboratory. What you have been नहीं होगा, what have you been doing? What have you been doing? Helping का पहले आएगा, what have you been doing? तो इसका जवाब क्या बनेगा? I have been working in the laboratory. I have been working in the laboratory. अगला जुमला, ठीक है, he has been studying Russian, बिल्कुल ठीक है, आगे चले। वही बात आ गई। बिल्कुल ठीक है, how long have you been waiting for me? I have been waiting। जवाब साफ है यार। आगे ठीक है, you have been waiting for 2 days now, बिल्कुल ठीक है, आगे चले। We have been arguing about this for 2 hours now। We have been arguing about this for 2 hours now, बिल्कुल ठीक है, बैठे बैठे बैठे। 11 से 20 तक बताइए मेंबर। 11 से बैठे रहिए, बैठ के बैठ। 11 से लेकर 15 तक, सॉरी नॉट 20, 15 तक। I have been in the bath, that's why my hair is all wet। I have been having a bath। I have been bathing। बात नाउन भी है, ब्रैकेट में लिखा हुआ तो ये वर्ब है। I have been taking a bath अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ब है तो ये वर्ब है, I have been bathing। नंबर 12 बताइए। You have been driving all day। Let me drive now। ठीक है, you have been, लो you के साथ है। How long have you been wearing glasses? How long have you been wearing glasses? ठीक है, next। The petrol gauge has been saying empty for quite a long time now। ठीक है, the petrol gauge has been saying, बिल्कुल ठीक है, नंबर 15। I have been trying to make a phone call to Rome। अबे पूरा जुमला बोलो। I am sorry for keeping you waiting। I have been trying to make a phone call to Rome। फोन कॉल नहीं, टेलीफोन कॉल। Okay, telephone फोन कॉल ये मत अमेरिकन छोड़ो पीछे। I have been trying to, ये बनेगा। हमना अफजल 16 से लेकर 20 तक टैली करवाइए। You have not been eating enough lately, that's why you feel irritable। He has been speaking for an hour now। I expect he'll soon be finished। ठीक है। That helicopter has been flying around the house for the last hour। Do you think it's taking photographs? The radio has been playing since 7 a.m। I wish someone would turn it off। Good। I have been shopping all day and I haven't a penny left। Good। इतने सारे पैसे खर्च करोगे तो पैसे बचेंगे कहाँ से? चलिए आप पैसे वाला एक्सरसाइज बताइए। मैंने 30 तक बनवाए थे, 35 तक। सर 36 से लेकर 50 तक। चलिए ठीक है, 36 से लेकर 45 तक है। महक आप टैली करवाइए 36 से लेकर 45 तक। Let this switch not be touched। आराम नाल पहले सवाल ही पढ़ना है। ये पैसिव है, हम करेक्शन ऑफ वर्ब नहीं खेल रहे। Don't touch this switch। Let this switch not be touched। Don't touch this switch। क्या बनाया? Let this switch not be touched। ठीक है, आगे। Have they stamped the letter? Has the letter been stamped by them? Has the letter, not have। Has the letter been stamped by them? Where did they throw away the rubbish? Where was the rubbish thrown by them? Where did they throw away the rubbish? क्या बनाया पैसे? Where was the rubbish thrown by them? नहीं, where was the rubbish thrown away by them?
thrown away by them. They don't allow smoking. Smoking is not allowed by them. Smoking is not allowed by them. ठीक है. Number 40. Has someone posted my parcel? Has my parcel been posted by someone? ठीक है. ये आना है नाम. नहीं यही नाम है ना. पिछली क्लास में छुट्टी की थी ना. बताता हूँ मैं. नहीं क्या यही बताता हूँ. 41 से लेकर आइए आगे 45 तक बताइए. गुड. Let your train not be missed. बोले let not थोड़ी है. Let your train not be missed. सही कर लिया तो करे. वाह भाई. हाँ आगे. Let this space be left cleared. Don't land anything. Let nothing be landed to. Let nothing be landed to aeroplane. नहीं जुमला लिखा है don't let her anything. तो her है नहीं. इसमें हर और एनीथिंग दोनों ऑब्जेक्ट है. आप हर से बना सकते हैं. लेट शी नॉट बी लैंड एनीथिंग. एक पैसिव ये बनेगा. लेट शी नॉट बी लैंड. LENT लैंड. लैंडेड नहीं. लैंडेड तो वो जमीन पे जो जहाज उतरता है वो लैंडेड होता है. ये तो उधार देने वाला है. फुटेड है ना. राइटेड. राइट की सेकंड फॉर्म राइटेड नहीं. और दूसरा अगर आप एनीथिंग से बनाएंगे तो यूं बन सकता है लेट नथिंग बी लेंट टू हर. लेट नथिंग बी लेंट LENT. लेट नथिंग बी लेंट टू हर. I thought you not to lend her anything. नहीं. पहले दो वर्ड आपने क्या कहे. I forbade. हाँ आप बोले. I forbade you not to lend her anything. I forbade you not to lend. ये क्या है ये. नहीं तो forbade आएगा तो not नहीं आएगा ना मेरा बेटा. बताया तो था. So I forbade you are to lend her anything. ये यूं बनेगा you are forbidden to lend her anything. You are forbidden. I forbid थोड़ी होगा क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट कहाँ होता है इसके अंदर. अगला जुमला कहाँ तक बताया आपने. 45 कौन बताएगा. ठीक है लेकिन स्पेलिंग आ रही है एडी है. ठीक है तो वैदा 46 से लेकर 50 तक टैली कराइए. ठीक है. ठीक है. सेंड की स्पेलिंग क्या है. ठीक है. ऐसी है. डी नहीं डी. डी नहीं ना. डी तो फर्स्ट फॉर्म है ना. बेटे टी लगाएंगे. थर्ड फॉर्म लगाना है. सेंट फॉर SENT. आगे. ठीक है. वाह वाह. अड़ोस पड़ोस की सारी बिल्डिंगों से शोर की आवाज है. शोर को जमा कर दिया. वाई नॉइज. वाई इज नॉइज. सही है. नंबर 14. बाय whom. हाँ by whom was Smith appreciated. ठीक है. अब ये दोनों होमवर्क आपके टैली हो गए. बुक में भी तो दिया था ना काम. नाम लिखिए. 75 तारीख लिख भी रही है. अल्लाह की बंदी अपना नाम लिखे.
आप लोग अगला टेस्ट अनाउंस है? मे आई हैव द रिमाइंडिंग डे? क्या क्या बताएं? टॉपिक नंबर 14, 15, 16 और ईडियम 76 से लेकर 90 तक, 75 से 90। अब मजा आ गया। दिमाग ठीक है या नहीं? पेज नंबर 59 ओपन करें। नोट्स में Today we are starting a new class of the grammar. मैंने ओपन करने के लिए कहा था. I did not ask you to write down anything there. Or the name of the topic, the caption which I made on the board that has been mentioned, problem with article. अब आर्टिकल की जो एक्सरसाइज है वो आप देख सकते हैं. पेज नंबर आपके 59, 60, 61, 62, 63. इसमें दिए हुए सारे के सारे जुमले तकरीबन 100 के करीब ब्लैंक्स है. और ये जब आप कर लेंगे उसके बाद जो आप सपोज टू सॉल्व इट आउट दिए. आप जरा बोर्ड की तरफ अटेंशन पे करते हैं. बंद कर दे नोट, पढ़े लिखे लग रहे, बंद कर दे. शाबाश. अब ये जो टॉपिक आर्टिकल मैंने लिखा है, पहले तो ये बताइए आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है. हु वुड लाइक टू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन आर्टिकल? फिर दूसरा सवाल ये होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल जो भी है. हाथ उठाए जी. बचपन से 4 क्लास से आर्टिकल पढ़ते हुए आ रहे, तो मे आई नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल डू वी हैव? हाथ उठा के ना, डू नॉट शो योर जहालत. हाँ, पढ़े लिखे बच्चे हाथ उठाते हैं. अच्छा, आर्टिकल कितने किस्म के होते हैं? दो. कौन बोल रहा है? और 3 कौन कौन कह रहा है? कौन यहाँ पे कोई अताउल्ला है? अच्छा, आर्टिकल 3 किस्म के होते हैं. कौन कौन कह रहे हैं? हाथ उठाए जरा, काइंडली रेज योर हैंड. जाहिलों की कमी नहीं गाली, फिर ढूंढो हजार मिलते हैं. नहीं, बस कर दे भाई, सलामी पे लंगर नहीं बांट रहा. कल छोटे भाई का भी दीजिएगा. सिंगल का मतलब आवाज नहीं जाती, बाबू के मुंह में होता. क्या बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? शादिब. आप क्या कह रहे थे कि 2 किस्म के आर्टिकल होते हैं? शादिब है? शादिल. ऑल राइट. कौन कौन से? मैं तो समझा था कि सही जवाब दोगे तो तुमने भी घुमा फिरा के वही जवाब दे दिया. हाथ उठा के देखो सर. चलिए, बी अलर्ट. आर्टिकल की जो ग्रामेटिकल डेफिनेशन जो किताबों में लिखी हुई है उसमें बताया जाता है कि आर्टिकल शोज द पोजीशन ऑफ नाउन. आर्टिकल शोज द पोजीशन ऑफ नाउन. लेकिन ये आप याद नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस कोट कर रहा हूँ.
इसकी जो रियल डेफिनेशन अब होगी, जो आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगी, आप याद रखिएगा, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। बोले इसको, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। इसमें एक वर्ड और ऐड कर ले कि आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। बोले, रिपीट करेंगे। ये जुमले का मतलब उर्दू में ये होता है कि आर्टिकल हमेशा एक नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। ये बात तो कंफर्म, ठीक है। अब दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल कि आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल हमेशा एक नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो नाउन होता है, इफ आई आर द डेफिनेशन ऑफ नाउन टू द स्टूडेंट, अगर बच्चे से डेफिनेशन नाउन की पूछी जाए ना, तो वो बेचारा बिल्कुल हाथ बांध के ना झूम झूम के वज्र में आके बयान करेगा। सब नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, वो बोल रहा है। तो याद रखिएगा, द होल वर्ल्ड इज नाउन। पूरी दुनिया नाउन है। ये जो दुनिया है जहाँ पर हम और आप रहते हैं, जो अल्लाह ताला ने एक प्लैनेट बनाया है, इसका भी नाम जमीन है, अर्थ कहते हैं इसको। तो हर चीज के नाम को नाउन कहते हैं। उर्दू में नाउन का मतलब होता है इस्म, नाम। अब मार्कर इस चीज का नाम है, ये नाउन है। बॉटल इस चीज का नाम है, नाउन है। बोर्ड इस चीज का नाम है, नाउन। हम सबके अपने अपने नाम है, नाउन। तो याद रखिएगा, द होल वर्ल्ड इज नाउन, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई ना कोई जगह है, कोई ना कोई शख्स है, कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई जानवर है। सबके नाम को हम नाउन कह रहे होते हैं। और डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल हमेशा हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू पुट एनी आर्टिकल इन द ब्लैंक, कि जिस ब्लैंक के अंदर कभी भी हमें आर्टिकल इस्तेमाल करना होगा, इसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो हमेशा एक नाउन होगा। ये तो लाजिम होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, नाउन बहुत सारे किस्म के होते हैं। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ये बेसिक 6 कैटेगरीज होती तो 5 है, वरना मटेरियल को और कॉन्क्रीट नाउन एक ही कह रहा होता है। तो अब कौन से वाले नाउन से पहले आ रहा होगा, तो ये मैं अभी आपके सामने बता दूंगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन याद रखिएगा कि आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। बीच में यू टर्न लूंगा और मुझे जवाब पक्का चाहिए। उसके बाद अगर कोई आपसे ये पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल जो भी है, आर्टिकल कितने किस्म के होते हैं, तो ये बिल्कुल इलिटरेट इग्नोरेंट पीपल वाला जवाब होता है। इतना तो जो मैट्रिक क्लास का बच्चा है, ही और शी शुड हैव अ कॉमन सेंस। लेकिन हमारी आर्मी के अंदर जब मैं था तो मुझे जुमला कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज जनरली अनकॉमन। कॉमन सेंस जो होता है ना, वो हर एक को नहीं होता। वही वाला हाल यही है कि नहीं तो सेंस ही नहीं है, तो उर्दू में कहाँ से बताओ। सेंस हो तो कुछ कॉमन हो ना। हम लोग कहते हैं पाकिस्तानियों की मेंटालिटी खराब ही नहीं होती था, क्यों? क्योंकि मेंटालिटी होगी तो खराब होगी ना, और दूर दूर तो है नहीं, तो वो खराब कहाँ से करेंगे। यानी कॉमन सेंस जो है वो जनरली अनकॉमन है, मतलब कॉमन सेंस भी हर एक को नहीं होता, ये भी खास खास लोगों को होता है। हालांकि है कॉमन सेंस, लेकिन अनकॉमन पीपल को होता है। अब आप कहते हैं सर आर्टिकल 3 किस्म के होते हैं, ए एंड द, तो जाहिरों वाला जवाब है भाई। आर्टिकल बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। अब वो कैटेगोरिकल वे के अंदर एक को हम नाम देते हैं डेफिनेट आर्टिकल का, और दूसरा हमारे पास कहलाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब बेसिकली these are the two categories of the article. आर्टिकल 2 किस्म के होते हैं, वन इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। अब ये जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ये कहलाता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है ये आर। अब ये डेफिनेट आर्टिकल द है, और इसको दा पढ़ते हैं कुछ लोग इसको दी प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो भाई इसको दादी बोलो, नानी बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्टिकल का यूजेज आपको होना चाहिए। हाँ, इनडेफिनेट आर्टिकल जो मैंने लिखा है कि आ और एन, ऑब्लिक डाल के लिखा है, आ और एन, ये जो और मैं बोल रहा हूँ ये इंग्लिश का बोल रहा हूँ, उर्दू वाला और नहीं बोल रहा। और का मतलब होता है या, यानी ये दोनों अल्टरनेट होते हैं। जिस ब्लैंक में आ आएगा उसमें एन नहीं आता, जिस ब्लैंक में एन आता है उसमें आ नहीं आता, सिंपल। लेकिन दोनों का मतलब एक होता है। मिसाल के तौर पर अगर ब्लैंक के बाद वर्ड लिखा हुआ है एप्पल और ब्लैंक के बाद वर्ड लिखा हुआ है बुक, यहाँ क्या आना चाहिए? और यहाँ पर कभी आई एप्पल सुना है? अभी सुना तो झूठ बोलिए। अभी मैंने कहा आई एप्पल सुना है, मैंने पहले कभी क्या नहीं पूछा, तो मुंह पे छुट्टा देते। मैंने कहा आई एप्पल सुना है कभी? कहा नहीं, अभी सुना है। अच्छा आई एप्पल हो सकता है? हाँ हो सकता है, गलती से कोई एप्पल में पहले लगा दे तो हो सकता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं?
अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ अ बुक एन बुक कभी भी नहीं हो सकता। अब अगर मैं कहता हूँ एन एप्पल, गलती से हो सकता है ना, अब देखिए कितनी जल्दी मान लो। एन एप्पल का मतलब उर्दू में क्या होगा? एक सेब। क्या होगा? बोले। और आ बुक का मतलब उर्दू में क्या होगा? एक जैसा। तो मेरा बेटा आ और एन दोनों का मतलब एक होता है, इसको दो अलग अलग काउंट नहीं। अब उस बेचारे ने जवाब तो सही दिया था, उसको शायद नाम नहीं याद होगा, लेकिन कुछ नॉट रिप्लाई नहीं आंसर थे। जवाब उसका सही था आर्टिकल दो किस्म के होते हैं, वन इसको डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड इसको। अब इंडेफिनेट आर्टिकल में दो वर्ड है, लेकिन इसको इंडिविजुअल काउंट नहीं किया जाता है, और एन है, और डेफिनेट आर्टिकल में वन वर्ड है। बारे में वन थिंग इज वेरी कॉमन, एक चीज बहुत कॉमन है, आसानी समझ में आनी चाहिए। आप किसी एक के रूल को बहुत प्रॉपर्ली करें। अगर आपको इंडेफिनेट के सारे रूल समझ में आ गए तो डेफिनेट खुद ब खुद क्लियर हो, क्योंकि इसका बिल्कुल ऑल्टरनेट डेफिनेट है। और अगर आप डेफिनेट आर्टिकल के यूजेज को समझ लेते हैं तो इनडेफिनेट आपके लिए आसान हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इसके क्या यूजेज होते हैं, कौन बताएगा आप में से हाथ उठाकर कि और इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? मुंह बंद रखिएगा, आई सेड टू रेज योर हैंड्स। जिसको जवाब आता है वो हाथ उठा के जवाब दे जल्दी। ये 4 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे टॉपिक, तो मैं आई नो दैट वेयर टू यूज आ, वेयर टू यूज एन, व्हाट वुड बी द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंडेफिनिट आर्टिकल। जी किसी ने नहीं पढ़ा तो बताएं। और कोई हाथ उठाएगा? आप बताइए। So an indefinite article is used to point out a singular noun, and it can be used in a sentence, and it is specifically used for vowels or sounding, and if there's a vowel and it sounds different, like Y, university, U is U, but you use A, because it has like Y sound to it. And what about is used when there is no vowel and it does not sound like a vowel. Alright, how many vowels do we have in English? 5. Name them. A, E, I, O, U. Alright, इसके अलावा फिर जवाब में कुछ कोताही है लेकिन कॉन्फिडेंस है, बोलो जी। Where do you use A और N? देखिए यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस मिसकंसेप्शन क्लियर, पहली बात तो क्लियर करें। ये जो वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट, अब आप में तो कुछ बच्चों को ये मालूम होगा कि सर ब्लैंक के बाद वाला वर्ड अगर वॉवेल से शुरू हो रहा होगा तो एन अप्लाई करते हैं, वॉवेल नहीं होगा तो आ अप्लाई करते हैं। तो जिनको ये बात अगर मालूम है तो उसको बस आज तक यहीं तक रहने दे, इसके बाद उसको अपनी जिंदगी में कभी लेफ्ट मत करें, पहला पॉइंट। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या होता है कि सर वो जो वॉवेल साउंड होता है उसमें भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को वॉवेल के पूरे साउंड नहीं आते, ये भी एक मसला है। फिर तीसरा सवाल अगर बच्चे से पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉवेल डू वी हैव एंड हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश, तो बच्चा भड़क के जवाब देता है 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये गिनती के मतलब 3 क्लास में ना बताता, वो जो स्कूल में टीचर होती थी ना फिंगर टिप पे याद कर रहा है, छोटे छोटे प्ले कार्ड बना देते, एक में ए लिखा हुआ होगा, एक में आई, एक में ओ, एक में यू, बच्चे लेकर खड़े, सामने वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो 5 वॉवेल बने होते हैं, वाली रोटेट होती रहती। बचपन से लेकर 55 तक हम यही पढ़ते हैं। अब मसला क्या है, देखिए मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ग्रामेटिकल पॉइंट है, अगर समझ में आए तो ठीक, और अगर नहीं समझ में आता तो समझना है कि अगर सवाल ध्यान में आता है कि वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल, हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे, तो व्हाट शुड बी द रूल देयर, उसका रूल क्या इंप्लीमेंट करेंगे, तो याद रखिएगा। देखिए अभी मैं सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेफिनेट आर्टिकल। बीच में अगर किसी ने गलती से भी किसी लाइन में दा बोला ना, मैंने उसका दिमाग ठीक कर देना। 2 बातें बता रहा हूँ, these 2 points should be kept in the mind very properly। कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि जो बातें मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा खुद डिक्टेट करूंगा। अपनी जो इंग्लिश है ना उसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जुमला लिखा हुआ है कि शी
gave me. फिर मैंने लिखा डैश बुक, डैश पेंसिल, डैश रबर एंड डैश अम्ब्रेला। सैलानी भी नाम रखी, सारी सखावत इसके अंदर। फिर हमने जुमला लिखा माय फ्रेंड इज डैश। आप बोलेंगे सर ऐसे छोड़ दो, तो जुमला ना लिख कर माय फ्रेंड इज डैश। आपके सबके ऑप्शन अलग अलग। माय फ्रेंड इज, ये कौन है फिर देखो समझा। लेट्स आस्क हिम फॉर डैश एडवाइस। अब आप लिख डाउन टू सेंटेंसेस एंड these two sentences convert 6 blanks, 6 blanks इसका कन्वर्ट। अब हमारा सवाल ये कि where to use and how to use indefinite article। क्या है सवाल हमारा? where and how to use indefinite article। रिपीट करेंगे, where and how to use indefinite article, यानी कैसे और कहां पर indefinite article का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके दो पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, तब भी मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा, आपको इंग्लिश में ही समझना है। मैंने पहला जुमला ये कहना कि बिफोर यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल वी हैव टू सी दैट वर्ड व्हिच इज आफ्टर द प्रेजेंट। दिस वर्ड शुड हैव टू प्रॉपर्टी। नंबर 1 इट शुड बी सिंगुलर नाउन एंड सेकंड शुड बी कॉमन नाउन। आई रिपीट, बिफोर यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल वी हैव टू सी दैट वर्ड व्हिच इज आफ्टर द ब्लैंक। हमें इंडेफिनिट आर्टिकल को इस्तेमाल करने से पहले उस लफ्ज को देखना होगा कि जो ब्लैंक के बाद मौजूद है। उस वर्ड के अंदर दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज का मतलब क्वालिटीज, क्वालिटीज का मतलब खुसूसियात, खुसूसियत नहीं, एक नहीं, एक से ज्यादा, दो। तो उसके अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए, दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो दो प्रॉपर्टीज मैंने कौन कौन सी बताई? नंबर 1 इट शुड बी अ सिंगुलर नाउन, और सेकंड मैंने आपको क्या बताया? इट शुड बी अ कॉमन नाउन। I repeat, before using indefinite article, we have to see that word which is after the blank. This word should have two properties. Number 1, it should be a singular noun. Second, it should be a common noun. If these two properties are found in that word, so we are allowed to use over there indefinite article. If any of the property lacks or decreases there, we are not supposed to allow there to use indefinite article. इसको यूं कह सकते हैं कि जब भी हम जुमले में इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे तो ब्लैंक के बाद वाले लफ्ज को देखेंगे बेटे, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, दो खुसूसियात। नंबर 1 वो सिंगुलर नाउन हो, सेकंड वो कॉमन नाउन हो। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी उस लफ्ज के अंदर मौजूद है तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अगर एक भी कम है कोई प्रॉपर्टी तो वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आएगा। क्या आएगा? ये छोड़ देंगे, ना ना ना, डेफिनेट भी नहीं आएगा। अभी मैंने कहा ना जहां की बात है वहां पे नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिफोर यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल वी हैव टू सी दैट वर्ड व्हिच इज आफ्टर द ब्लैंक। दिस वर्ड शुड हैव टू प्रॉपर्टीज। इसकी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए? सिंगुलर नाउन होनी चाहिए और कॉमन नाउन। इसके अंदर अगर दोनों प्रॉपर्टी है तो हम वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक भी प्रॉपर्टी कम है तो वहां इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आएगा। क्या आएगा? अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। वी आर गोइंग टू पुट इट इनटू द डस्टबिन फॉर द टाइम, राइट। अब जो मैंने पहला जुमला लिखा है तो पहले जुमले जो लिखा है वो शी गेव मी, फिर ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद लिखा है वो। इज इट सिंगुलर नाउन? कॉमन नाउन? दोनों प्रॉपर्टीज में पूरी होगी। यही चीज पेंसिल में भी, यही चीज रबर में भी, यही चीज अम्ब्रेला में भी। यानी अम्ब्रेला अपनी जगह पर सिंगुलर नाउन है, कॉमन नाउन है, रबर सिंगुलर नाउन है, कॉमन नाउन है, और पेंसिल जो है वो भी सिंगुलर नाउन, कॉमन नाउन है। यही चीज इसके साथ भी, इसके साथ भी। ये भी सिंगुलर है, कॉमन है, ये भी सिंगुलर है, कॉमन है। इसका मतलब इन 6 अल्फाजों के अंदर दोनों प्रॉपर्टी पाई गई। तो इसका मतलब है कि इन ब्लैंक्स में, इन ब्लैंक्स के अंदर इंडेफिनिट के अलावा कोई और आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो। माय क्लियर? अच्छा, अगर ब्लैंक के बाद सपोज कर लेते हैं बेटे कि वर्ड आ जाए हमारे पास बॉय, या ब्लैंक के बाद वर्ड आ जाता है स्टार, तो देखिए ब्लैंक के बाद जो वर्ड लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? बॉय लिखा हुआ। कॉमन है? कॉमन है? सिंगुलर है? एक प्रॉपर्टी है नहीं, इसका अंदर इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं है। क्या आएगा? छोड़ देंगे, अभी छोड़ दो। अच्छा, सेकंड वर्ड ब्लैंक के बाद क्या लिखा? सिंगुलर है, कॉमन है, कॉमन इसका है।
7 लेयर है आसमान के, 7वां आसमान के ऊपर जन्नत बनाई है। इंग्लिश पढ़ लो, साइंस नहीं। स्काई देखिए सिंगुलर नाउन है लेकिन कॉमन है। एक भी प्रॉपर्टी कम हो कि वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल है। तो मैंने आप लोगों को पहली प्रॉपर्टी बताई। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई कि बिफोर यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल वी हैव टू सी दैट वर्ड व्हिच इज आफ्टर द ब्लैंक दिस वर्ड शुड हैव टू प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? सिंगुलर और प्लूरल। तो मतलब इसके अंदर अगर दोनों प्रॉपर्टीज है तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, एक भी प्रॉपर्टी कम होगी हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल। ये बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर वेयर टू यूज आ और वेयर टू यूज एन, कि भाई आ और एन का फर्क कैसे करेंगे। भाई आ और एन तो दोनों एक ही जगह पे इस्तेमाल होंगे, तो फर्क कैसे करेंगे, ये वाला सवाल है। ये टू बी कंटिन्यूड फॉर द वैल्यू। सही है।